हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 जो है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी जो चैप्टर है हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल्स, यानी चैप्टर जो है थर्ड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से चैप्टर। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे। और इसमें हर एक पहलू जो अब तक आपने नहीं जाना है, हम उस पर विचार करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो अवर 12th क्वेश्चन अराइव हियर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। एनालाइज द मेन constraint to be USA hegemony in the present day of the world. This is the most important question. There is hegemony of present day of world on the America, USA. This is the most important here. You know that there are three constraints is American power, the biggest restriction to the American hegemony. The lies within their heart of the hegemony itself. You know that there is a three constraint is American power. The biggest restriction to be American hegemony lies within the heart of hegemony itself. These constants are institutional, open nature of American society for a NATO. NATO for the first and second constants here. This is the most important NATO here. The USA launched Operation Enduring Freedom as the part of global war of terror. Against all this, a suspected began to be 9/11 attack, mainly for Al-Qaeda and Taliban regime in Afghanistan. This is the most important here, hegemony of present day of the world of America. Though the Taliban regime in African was as a terrorist attack by Al-Qaeda and Taliban still continue, and more so against the Western target. The target of operation made by the US force was all over the world. You know that is important. The Al-Qaeda and the Taliban still continue, and more so against Western target. The arrest people without the knowledge of government of the person begin arrest. This is their power of hegemony of present of USA. And this person were returned to secret prisons. Some of them were is about to be Guantanamo base or USA Navy's base in the Cuba, and where they have is neither protection of international law and nor their own country on that the US. This is most important. Their point here. Even at there are UNA representative are not be allowed to be interact with this person. This is the most important and most hegemony for American here. The constant is American hegemony are there. The following point here. The institution architect of the American state is the very first constant. In American, there is a system of division of power between the branch of government. You know that is the most important for hegemony here, American. Due to the division of power, restrictions are placed on the executive branch upon the exercise of American military power. This is important. Due to this division of power, restrictions are placed on the executive branch upon the exercise of American military power here. The second constant stem for the open nature of American society. It is basically
domestic in the nature. This is important. The second constant system from the open nature of American society, it is a basically domestical in the nature. This is important here. The next point here, the people participate regarding to the deep questioning of working of the government is a seen. And this factor is a husk constant on USA military action overseas here. This is important. The third constant is a North Antarctica Threat Organization, means NATO. There is a North Antarctica Threat Organization, NATO. It is the most significant among all the, but we get more important in the future. NATO is the only organization in the international system that could be a possible moderate the size of American power because it has a strong hold as the US market economics. This is important. The NATO is the only organization in the international system that could be possible moderate the size of the American power because it has a strong hold as the USA market economics. And third constant regarding to NATO is the most important for the future. You know that this is the most important point here, the present day hegemony of America. यहाँ पर जो हमारा समक्ष जो 12वां क्वेश्चन आया जो कि अंतिम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व में अमेरिका के वर्चस्व की मुख्य बाधाओं का विश्लेषण करें कि विश्व में जो है अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित हुआ और मुख्य बाधाओं का विश्लेषण करें, कौन कौन से बाधाएं हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान विश्व में अमेरिका का जो है हेजेमनी का मुख्य बाधाओं का विश्लेषण करें, तो ये ज़रूरी भी है क्वेश्चन और एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका आंसर भी कई हद तक वही क्वेश्चन के अंतर्गत है जो अमेरिका का जो है वर्चस्व के आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। कहते हैं अमेरिकी शक्ति पर 3 बाधाएं हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकी जो है वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंध जो है जो आधिपत्य के मूल्य में ही निहित है, यानी उसका वर्चस्व में ही छुपा हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो प्रतिबंधित करती है बाधाएं हैं उसकी अपनी हेजेमनी में ही है और ये बाधाएं पहली है। दूसरी बाधाओं के लिए अमेरिकी नाटो समाज की स्थापना खुली प्राकृतिक का है, क्योंकि ये बाधाएं पहली और दूसरी दोनों ही नाटो की जो है संगत खुली प्राकृतिक व्यवस्था ही है जो अमेरिका के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रही है। अमेरिका ने 9/11 हमले के पीछे संदिग्ध सभी लोगों को मुख्य रूप से अलकायदा और पाकिस्तान में तालिबान शासकों के खिलाफ आतंकवाद व वैश्विक युद्ध के एक भाग के रूप में ऑपरेशन डेडली फ्रीडम शुरू किया था। ये तो आपको पता ही होगा और हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसका जो है बहुत डिस्कशन किया था, वही पॉइंट यहाँ पर भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। तो मैंने कहा ना, अगर एक क्वेश्चन याद करते हो तो कई क्वेश्चनों में जो है ये काम चल जाता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन समझो तो अच्छे से समझो, सारे आंसर आपको एक जैसे ही लगेंगे। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि वहाँ पर जो है ऑपरेशन डेडली फ्रीडम हमने पढ़ा था, उसमें सारी पॉइंट यही थी कि अमेरिका ने 9/11 के हमले के पीछे जितने भी संदिग्ध थे अलकायदा को उन्होंने माना था और तालिबान शासकों के खिलाफ उन्होंने आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध के भाग के रूप में ऑपरेशन डेडली फ्रीडम शुरू किया था, जो ज़रूरी भी था और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा भी साबित हुई। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान शासक के आसीन उखाड़ फेंका गया, यदि देखा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबानों को जो है शासन को आसानी से उखाड़ फेंका, लेकिन अलकायदा और तालिबान द्वारा आतंकवादी हमले अभी भी जारी है और ये सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने प्रस्तुत है, खासकर पश्चिमी ठिकानों के खिलाफ। और अमेरिकी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का निशाना पूरी दुनिया थी। देखिए अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाई इसका जो है खामोशा सारे विश्व भुगत रही है। रिजल्ट यही है कि कहते हैं कोई भी देश अगर करती है तो इसका प्रभाव सिर्फ उसी देश पर नहीं पड़ता है, पूरे विश्व सतह पर पड़ता है और ये बात साफ कर दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ में जो तालिबान के रिगार्डिंग अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाई थी और उसको उखाड़ फेंका था, इसी कारण अलकायदा और तालिबान आज पूरे दुनिया के लिए जो है सर का दर्द बन गया है और अमेरिका इस पर अभी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। और अमेरिका की अगर देखा जाए तो उसमें चापलूसी ही थी, क्योंकि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्तियों सरकार की जानकारी के दिए बिना लोग गिरफ्तार करती थी और इन व्यक्तियों को गुप्त जेलों में बंद कर दिया जाता था और उनमें कुछ और क्यूबा में अमेरिका जो नौसैनिक के अड्डे जो है 9 में बे में लाया गया था और जहाँ उन्हें न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण प्राप्त था और न ही अमेरिकी कानून अपने देश के कानून का पालन कर रहे थे। तो जनरल सी बात है, जब आप अपनी मनमानी कीजिएगा तो इसका जो है उल्टा ही असर पड़ता है।
लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि कहते हैं कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ होता है वो जग कल्याण के लिए सही नहीं होता है, और ऐसे लोगों को सदैव उखाड़ फेंकना ही सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। इवन कि एक सरकार की नहीं, पूरे विश्व के सरकारों को ये होना चाहिए कि ऐसे आतंकवादी नहीं होना चाहिए। ये मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरे होते हैं, और मानव जाति के लिए ऐसे खतरों को उखाड़ फेंकना ही कहते हैं उचित होता है। अब देखा जाए तो यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के भी कैदियों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं होती थी, तो वहाँ पर अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये सारे जो है गतिविधियाँ चलाई। इन्हीं कारणों से जो है आज भी अलकायदा और तालिबान जो है पूरे विश्व में जो है आतंकवादी फैलाने में सक्रिय हो रखा है। तो जरना सी बात है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि विश्व हमारा है, संसार हमारा है, हम क्यों एक दूसरे जानों के जो है खतरे बने पड़े हैं। कहते हैं जो बातों से हल हो सकता है उसके लिए हथियार की क्या आवश्यकता है। कहते हैं हम गोला बारूद पे खड़े हुए हैं और हम शांति की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। देखा जाए तो पूरा विश्व जो है परमाणु बम के ऊपर खड़ा है, फिर भी शांति की बात ये लोग करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं अगर कोई देश में अगर युद्ध की भावना न हो, अगर ये इन सबको नष्ट कर दिया जाए, निशस्त्रीकरण की भावना अपनाया जाए, तो विश्व में जो है अमन और शांति जो है सदैव बरकरार रहेगा। और अमन शांति से जो जीवन जी जाती है वो संकटों से नहीं जिया जा सकता। कहते हैं चाहे वो आतंकवादी हो चाहे आम व्यक्ति हो, सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे साफ शब्दों में आ गया अमेरिका का वर्चस्व पर कौन कौन सी चीज़ें बाधाएं पड़ी हुई है। तो अमेरिका का आधिपत्य पर बाधाएं क्या क्या हैं। अमेरिकी राज्य जो है स्थानगत वस्तुकला सबसे पहली बाधा है, यानी अमेरिका राज्य की जो है स्थानगत वस्तुकला सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। और अमेरिका में सरकार की शाखाओं के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी है। अगर आपको मैं बता दूं अमेरिका के सरकार के बारे में आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगी कि इसकी शक्ति जो है 2 भागों में ही बटी हुई है। इवन कि तीसरा भाग जो है उच्च न्यायालय है। यानी देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्ति है, उनके कांग्रेस के पास शक्ति है और एक उच्च न्यायालय के पास शक्तियाँ हैं। लेकिन ये शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा रही होती हैं। शक्तियों के इस विभाजन के कारण अमेरिका सैन्य शक्ति के प्रयोग पर जो है कार्यकारी शाखा पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो इसमें ये बात साफ हो जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्ष तौर पे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या अपनी सेना को जो है आदेश नहीं दे सकते हैं। इसके लिए जो है अमेरिकी कांग्रेस को ये बात समझ होना चाहिए कि हमारे देश को खतरा है और उसको लगता है कि अमेरिकी सेना की आवश्यकता है, तो जाके जो है सैन्य शक्ति का वो उपयोग कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर शक्ति का जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं। दूसरी बाधा अमेरिका सामाजिक खुली प्राकृतिक से उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः घरेलू प्राकृतिक का है। देखा जाए तो अमेरिकी सामाजिक खुली प्राकृतिक जो है सबसे बड़ी बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है। और आगे की बात करें सरकार की कामकाज पर गहरी सवाल उठाने को लेकर लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है कि वहाँ के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो है अमेरिका के जो है गहरी कामकाज पर सवाल उठाते रहते हैं। इंडिया के जैसा नहीं है कि सरकार गलत भी करता रहे फिर भी हम इंडिया के लोग जो हैं चुप ही रहें और यहाँ पर सिर्फ एक राजनीतिक ही की जाती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अलग टाइप के हैं। सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं उन पे वो उंगली उठाने लग जाते हैं और ये कारक विदेश में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर एक बड़ी बाधा बन जाती है, जिसके वजह से ये सबसे बड़ा बाधा के रूप में देखी जा सकती है। यदि आगे हम तीसरी बाधा की बात करें तो तीसरी बाधा जो है अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो। आपको पता है कि उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भी बहुत बड़ी बाधा है। ये सभी में सबसे महत्वपूर्ण है और भविष्य में इसे और अधिक महत्व मिलेगा। इसलिए नाटो के सदस्य बनने के लिए हर देश जो है ललायित रहता है कि यहाँ तक कि भारत को भी जो है नाटो की शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। नाटो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एकमात्र संगठन है जो संभवतः अमेरिकी शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी मजबूती पकड़ है। यानी देखा जाए तो नाटो का प्रभुत्व अमेरिका से भी अधिक है और नाटो की प्रभुत्व इतनी है कि अमेरिका के जो है अर्थव्यवस्था को जो है तहस नहस करने में नाटो अपनी कदम उठा सकता है। तो देखा जाए तो ये कारण सबसे बड़ी है अमेरिका के लिए बाधा के रूप में कि नाटो को जो है अधिक पावर मिली हुई है।
और देखा जाए तो नाटो लेकर तीसरी बाधा भविष्य के लिए सबसे अहम है और ये आने वाला समय में बहुत ही अहम भूमिका भी नाटो निभा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है और चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मदद करने की भावना है, तो आप यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकती हो। और ये 24 घंटे के लिए लगाओगे तो जो आपके कॉन्टैक्ट में बच्चे होंगे, क्योंकि आप मुझे पता है अगर आप +2 में हो तो आपके समक्ष +2 के ही कॉन्टैक्ट होते हैं, आपके +2 के ही बच्चे बहुत से आपसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। अगर आप जो है आप स्टेटस पे लगाइएगा तो वो ज़रूर देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा वो लीव कर जाएंगे। इसमें आपका कोई भी जो है दोष नहीं होगा, आपने अच्छा कार्य किया त्रिपाण स्टडी से हेल्प करके। तो आप अपनी जो है सहायता की भावना रखिए, मैं आपके लिए अगला वीडियो के लिए जो है प्रयत्नशील रहूँगा, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, नहीं तो आपको अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। एक वीडियो देख लीजिएगा, फिर बाद में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो उस वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। इसलिए अच्छा है और +2 में हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा।